students, welcome back in my class. So today we are going to start with the same chapter but part second, that is natural disasters. So in my previous video I have told you about earthquake, volcanoes and floods. So in today's video we will learn about three more important natural disasters. Number one is your tsunami. Now here T is silent, okay? You must have learned this silent word in your English chapters. Number second is your drought. And number four is your cyclone. So number three. So these are the topics which we will cover in today's video. So my dear students, how tsunamis occur? What is tsunami? Tsunamis are a huge wave. मतलब बहुत बड़े बड़े लहरें होती है, ठीक है, समुद्र के किनारे. ठीक, तो हम बोल सकते हैं tsunami is a huge wave. ओके, अब काम क्या करते हैं सुनामी? व्हाट इज द वर्क ऑफ द सुनामी? डिस्ट्रक्शन. ठीक है, सेकेंड पॉइंट डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही. जब सुनामी आती है, बहुत बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें आती हैं, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही होती है. हाउ इट अकर्स? ड्यू टू द earthquake comes under the water, या volcanic eruption हो गया पानी के अंदर. So due to that the tsunamis occur. ठीक है, understand 3 points. होता कैसे है, आते कैसे है? Due to earthquake under the water, okay, या volcanic eruptions under the water. तो इस तरह से सुनामीज हमारे आती है. ओके, important points. Tsunamis is a huge waves which occur under the water, and what it causes? It causes the destruction. And how it comes? It comes due to the earthquake which come under the water, or you can say it is due to the volcanic eruption under the water. So this was about your tsunami. Now we will learn about its safety measures. Safety measures are same as we have done in flood. Okay, so number one, if there is a you can say message about कि tsunami आ रही है, you should clear the coastal areas. So immediately without thinking anything, just clear the coastal areas. Second, जो sea shore होता है, that should also be cleared by the government, or that should also be cleared by the people. Now third one, people try not to make home near the coastal areas. सबसे first, like समुद्र के किनारे घर बनाना नहीं चाहिए. और इन केस अगर आप बना देते हो, तो इफ देयर इज अ मैसेज, जस्ट remove yourself from that place. So these are the some of the safety measures, and you should always have a first aid box with you, and food also, so that in case if you don't get food anywhere, you should have आपके पास अपना खुद होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर tsunamis. So second one is your drought. अब drought क्या है? ये कब होता है? When there is a scarcity of water. कब होता है? When there is a scarcity भी बोल सकते हैं, scarcity of water और rainfall. जब रेनफॉल किसी प्लेस में बहुत टाइम से रेनफॉल नहीं होता है, तो
तो वो एरिया क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है। सूख जाता है तो वो नीचे जो अर्थ है वो फटने लगती है, ओके। कभी क्या होता है, आपकी जो स्किन है अगर आप उसमें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं दोगे तो स्किन रफ हो जाती है ना, ऐसे हल्की हल्की सी स्किन आपको ऐसे लगती है कि फटने लगती है, राइट। तो सेम वे अगर हम किसी भी प्लेस में पानी नहीं डालेंगे या वहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो क्या होगा, वहाँ का जो एरिया है वो सूख जाएगा और धीरे धीरे फटने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज योर drought. It is due to the shortage of water or shortage of rainfall in a particular place. Okay, वैसे ज़्यादातर hot dry area पे ये scarcity होती है, okay. और it is very difficult, you know, for farmers it is very difficult, क्योंकि जो farmers है उनका जो ज़्यादातर क्रॉप है पूरा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानसून के ऊपर, कि मानसून आएगा, बारिश आएगी एंड देन जो खेतों में वो पानी मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, तो उस वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो एक तो हमें ऐसे भी कुछ क्रॉप्स ऐसे उगाने चाहिए, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं हमारे जो यू नो स्केर्सिटी ऑफ वाटर को भी उस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारा शोरगुम, मेज एंड मिलेट, ये जो क्रॉप्स है ये क्या है कि उस एरिया पे अपने आप को इजीली अडॉप्ट कर सकती है और फिर वो ग्रो कर सकती है, ठीक है। नाउ द सेफ्टी मेजर्स, नंबर 1 सेव वाटर, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी पानी को कम खर्च करो, ठीक है। जैसे आप ब्रश करते हो, टैप ओपन रखते हो, तो स्टॉप डूइंग दैट, डू योर ब्रश एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू क्लीन अप योर माउथ देन ओपन द टैप, ओके। सेकेंड, स्टोर वाटर, बहुत बड़े बड़े रिजर्वोयर्स बने हुए होते हैं पानी के लिए, तो उसमें पानी स्टोर करके रखिए, सो दैट इन केस इफ देयर इज नो वाटर यू कैन यूज दैट वाटर, ओके। देन यू हैव rain water can be used in you can say farmers, can be used by farmers. क्या होता है कि जहाँ पे पानी नहीं होता है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंकीज बना दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जब बारिश हो तो वो बारिश का पानी उस टैंकी में रुक जाए और फिर वो हमारे इरिगेशन के लिए या फिर कुछ अदर हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज़ हो सकता है। देन अभी मैंने आपको बताया ऐसे क्रॉप्स हमें उगाने चाहिए जो कि उस ड्रॉट एरिया में रेसिस्टेंट हो, अपने आप को उसमें आराम से उगा सकते हैं। और कुछ क्रॉप्स इन्होंने दिए जैसे शोरगम, मेज एंड मिलेट, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो ड्रॉट एरिया में भी उग सकते हैं, ओके। फार्मर्स जो है वो क्या बोलते हैं, पानी जब हम डालते हैं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि पूरे ऐसे में डाल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन गिव वाटर टू द रूट्स, क्योंकि रूट से ही हमारा पानी जो है ऊपर जाता है ना पूरे प्लांट्स को। अगर हम ऊपर से डालेंगे तो उतना पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फार्मर्स शुड और वी शुड ट्राई टू गिव वाटर टू द प्लांट इन इट्स रूट से हम दे तो वो पूरे प्लांट में जाएगा, ओके। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ शुड बी इम्प्रूव्ड, और लैंड को भी इम्प्रूव करने के लिए ड्रॉट ना पड़े, तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी मेजर्स है टू रिकवर फ्रॉम ड्रॉट से अपने आप को, या फिर ड्रॉट ना होने दें। तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वी कैन अप्लाई दैट। नाउ नंबर 3 इज अ साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? अभी हमने वेव्स पढ़े थे, ठीक है। वेव्स क्या है? समुद्र में होते हैं, समुद्र में जैसे अर्थक्वेक आता है या कुछ ऐसा होता है तब होते हैं। लेकिन साइक्लोन क्या है? हवा, ठीक है, गोल गोल जब बहुत तेज हवा घूमती है और ऐसे इस तरह से घूमती है, ठीक है। तो साइक्लोन कुछ इस तरह से आता है, ओके। तो ये क्या है? गोल गोल हवा घूमती है जब तब आता है। और ये कब होता है? जब हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। कब होते हैं ये? तो जब हैवी रेनफॉल होती है तब हमारे ये साइक्लोन होते हैं। और ये किस तरह से होता है? इन सर्कुलर मोशन,
मोशन, ऐसे गोल गोल है ना, आप अगर देखोगे तो गोल गोल ही है ना, इस तरह से। और ये भी जो है बहुत ही सारा डिस्ट्रक्शन अपने साथ लेके जाती है, ठीक है, लेके आती है। जैसे कि हमारे आसपास के जो भी घर, हाउसेस है या ट्रीज है या फिर वाटर है, सब कुछ अपने साथ अपने इस सर्कुलर मोशन के साथ लेती हुई चलती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का साइक्लोन आर ऑल्सो वेरी यू कैन से violent wind that moves in a circular motion and destroy everything which comes in its way। जो इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उन सबको बर्बाद करके, डिस्ट्रॉय करके अपना आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ओके, टोरेंटल रेन्स, यानी कि जब बहुत हैवी रेनफॉल होता है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश कंटिन्यूसली बारिश होती है, तो वहाँ पे सी के किनारे या फिर नदी के सी के किनारे ये साइक्लोन अकर होते हैं, ओके। सो व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स? नंबर 1, वी शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें आपके जितनी भी कॉमन मेडिसिन है लाइक डिटॉल एंड देन यू हैव बीटाडीन एंड ऑल, क्रोसिन, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देन जो वेदर ट्रैकर्स हैं, जो हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे वेदर कास्ट होते हैं, जो बताते हैं हमारे मौसम के बारे में, आज ऐसा मौसम है, कल वैसा मौसम है, राइट। तो उनकी अगर वो कहीं पे आपको बताते हैं कि दिस एरिया शुड बी क्लीन बिकॉज ऑफ साइक्लोन मे अकर, सो यू शुड जस्ट एवोकेट दैट एरिया, वो एरिया फटाफट खाली कर दो और अपने साथ साथ अपना वाटर, ओके, फूड अपने सेफ्टी के साथ लेके चलो। देन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, अब उनको तो इतनी अकल नहीं है ना कि वो खुद ही चले जाए, तो हमें उनको सेफ प्लेस में हमें पहुंचाना चाहिए। एंड लास्ट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, that all should be switched off, okay। So my dear students, this was your second part of the same chapter, natural disaster. I hope you will understand this chapter. If you don't understand, please write down your comments, whatever you will not understand, or you can leave a message to me so that I can reply to your queries for the time being. Thank you, Jai.